Assalamu alaikum to all the beautiful people out there. I welcome you all to my YouTube channel that is Learn with Symbol. You know what I was thinking today that your voice is your superpower, but most people don't know this and they leave that voice unused, like having a phone with no battery. But today we'll charge your confidence, your voice, and your presence. Let's move ahead and enjoy the pleasant weather caused by the monsoon that we are having in this season. I read somewhere that your words are like seeds and you plant them. When you plant them, they grow either into good relations or bad relations, either good or bad, or sad or happy. So, better not to plant bad relations. Moving forward to plant good relations, I welcome you all to the day 10 of our daily vocab session. In this vocab session, we bring 5 new words each day and we learn about their synonyms, their antonyms, and we also learn their pronunciation and their usage in the sentence. And your people become able to practice the English language in a better way. So, this session is equally beneficial for all the students out there who are preparing for any kind of exam. Either there is a vocab section portion, or it is a preposition portion, it is a sentence correction portion. But English is a language that you can never skip. आप skip नहीं कर सकते English language को. English language is very important for any of your exam. So the thing is that कि written expression को beautify करना is equally important alongside your speech tone. I again say you that if you have not subscribed the channel, keep stay tuned by clicking the button of subscription. लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें if you have learned anything new today. Welcoming you all to the day 10 of our daily vocabulary session for the English language. So the word one for today is benevolent. Benevolent does mean a well-meaning or kindly. Means kind होना, किसी का खैर ख्वाह होना या मेहरबान होना किसी के ऊपर. Synonyms है इसके to be kind, generous या compassionate. Antonyms में we have cruel, unkind या malevolent. Sentence structure हम इसलिए देखते हैं कि we know the usage of the word. The benevolent king helped the poor people. वो इतना kind king था कि he helped the poor people. In this way we use the word benevolent. The next word for today's session is furious. Yeah, furious. Furious just mean extremely angry. It means बहुत ज़्यादा गुस्सा करना या गुस्से में रहना. Synonyms है इसके angry, enraged या outraged. Antonyms में we have calm या peace पे रहना, peaceful और gentle. सेंटेंस स्ट्रक्चर में इसका यूजेज अगर हम देखें तो शी वॉज फ्यूरियस व्हेन शी सॉ द मैस. जब उसने ये मैस देखा. मैस एक झगड़े को भी एक डिसप्रोपोर्शनेटली कोई भी चीज़ हो रही होती है तो उसको भी हम कहते हैं. तो जब उसने वो चीज़ देखी तो उसको बहुत गुस्सा आया. तो शी वॉज वेरी फ्यूरियस, वेरी एंग्री. The third word is fragile. Fragile does mean easily breakable या डैमेज हो जाने वाली कोई चीज़. वीक हम इसको सिंपल कहते हैं. इसकी मीनिंग नरम, नाजुक या जो आराम से टूट जाए. इसके सिनोनिम्स में वी हैव डेलिकेट या वीक या ब्रिटल. और इसके एंटोनिम्स में वही है. वीक का अपोजिट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग. डेलिकेट का अपोजिट क्या होता है? ड्यूरेबल या स्टर्डी. और इसका जो यूजेज है दैट विल बी लाइक प्लीज़ हैंडल द ग्लास वेस केयरफुली, इट्स फ्रेजाइल. वो इतना वीक है, प्लीज़ हैंडल केयरफुली. ग्लास वेस जो है, जो एक वेस बना होता है ग्लास का, शीशे का एक गुलदस्ता बना हुआ था, तो प्लीज़ कीप दैट केयरफुली.
क्योंकि वो इतना वीक है, अगर गिर गया तो वो टूट जाएगा। द नेक्स्ट वर्ड इज़ फैसिनेट। या फैसिनेट इज़ वेरी ब्यूटिफुल वर्ड टू अट्रैक्ट एंड होल्ड द अटेंशन ऑफ समवन। किसी को मोह लेना या दिल को लुभा देना किसी की, तो दैट वर्ड उस जगह पे हम ये यूज़ करते हैं वर्ड। इसके सिनोनिम्स में वो ये टू अट्रैक्ट, चार्म करना, टू चार्म या टू कैप्टिवेट, अटेंशन ग्रैब कर लेना किसी की ना, उस वर्ड के लिए यूज़ होता है फैसिनेट। एंटोनियम्स में वी हैव रिपेल, बोर या डिसइंटरेस्ट शो करना, किसी के ऊपर इंटरेस्ट नहीं होता, किसी के चीज़ में हमें वो चीज़ हमें अट्रैक्ट नहीं करी होती, तो वहाँ पे ये वर्ड यूज़ नहीं होता। एग्जैक्टली क्योंकि उसका एंटोनियम है। सेंटेंस के अंदर जाकर हम देखेंगे इसका यूजेज। द मैजिशियंस ट्रिक्स फैसिनेटेड द चिल्ड्रन। मैजिशियन की जो ट्रिक्स थी उन्होंने इस चिल्ड्रन को मोह कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, उनको मतलब हैरत में डाल दिया। तो विल यूज़ द वर्ड फैसिनेट इन दिस वे। द नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज़ एक्मी। ईजी है एक्मी। इसकी मीनिंग है द हाईएस्ट पॉइंट और पीक या फिर हाईएस्ट पॉइंट, जो हम ना जेनथ पॉइंट कहते हैं उसको कहते हैं एक्मे। अब इसमें क्या होता है, उरूज की जो एक बुलंदी होती है उसको हम कहते हैं। अब इसके सिनोनिम्स हैं वो या जेनथ, पीक या फिर पिनाकल। और एंटोनियम्स में वो या बॉटम या बेस या फिर नैदर। और उसके बाद हम इसके सेंटेंसेस के अंदर इसका यूजेज भी देखेंगे। द साइंटिस्ट रीच्ड द एक्मी ऑफ हिज करियर। साइंटिस्ट जो था वो अपने करियर की पीक पर पहुंच गया था। वेयर ही वॉज एक्सपीरियंसिंग वेरी गुड थिंग्स। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक नहीं किया, मेरी वीडियो अभी तक शेयर नहीं की, या फिर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो अगेन से यू to go and subscribe the channel। vocab session 10 में जो 5 words थे हमारे टास्क, वो वी हैव completed, वी आर डन with them। तो आई होप कि आपको वो सब क्लियर हो गए होंगे। लेकिन इससे पहले जो भी हमारी वीडियोस हैं जो हम रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं, आपको उनकी लिंक्स प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट पूरी हम वहाँ पे अपलोड कर देंगे। गो देयर एंड वॉच देम एज वेल and keep stay tuned to the channel. Thank you so much and love is take care.